यहाँ से और हम नहीं, और हमें मिलना चाहिए। तो ये सबसे बेहतर, क्योंकि ये कोई तरीका ना हुआ कि I think they're announced and we should have been doing by now. So these things should not happen. And I want to tell them, the people who are there at the Helm of Affairs, that these things should not happen. It will not go well with them. We'll help ourselves, but it will not go well with them. And I can assure you, sir, Mr. Saab ne kaha ke politics or no politics. I can assure you that the university comes first. We may be from any party, anywhere, but the university, Aligarh Muslim University, comes first, and we do everything to bring it back to Islam. आप लोगों ने बहुत उसमें काम किया है, the RAF students there to Korea, the students and the alumni of America literally forced the Prime Minister then, who was visiting America, to withdraw the tariff. I know that. And there's one more thing which also gives me pain personally. We have been asked, regularly we've been asked, our credentials, how secular we are. I do not like that word to be used for university, secular. If we would have been secular, one of the first graduates from the university was Raja Mahendra Pratap Singh. If we were biased, we wouldn't have. So let me tell you, this is Aligarh University is a great place. The mention of secularism, mention of credentials of people studying there or people who have studied there is not required. Because I give you the names. They just see these names. I'm not going to take much time. Just see the names. Ali Bradhan, Muhammad Ali Johar, who spoke for us at the Roundtable Conference and said, I will not go to India till it's independent. I will only go to India as an independent country, and he died there. These are, he was a renegade. I'm talking about a renegade. Khan Abdul Ghaffar Khan. Another renegade. You want to know his credentials? How credentials? And you want to know what he fought for? We all were fighting against the British rule. Maulana Hasan Mohani, and he did it. So, as far as credentials is concerned, no one has denied. And I am proud to say from this dais, just a second, sir. I am proud to say from this dais, that no old boy or the one studying now, our children, have ever been any activity which is against the country. I am proud. I've been asked to speak, asked to leave my speech. I can only say one thing. What Aligarh means to me can be summed up in one phrase: fascination, affection, and happiness. Khuda. Thank you, Sri Kakub Hamid sir, for enlightening us by his brilliant speech. All my repeated request to stick to time schedule remain futile. And again, because the respected speakers to stick to the time schedule, as Vice President of India and Governor of UP are very busy people, have to leave on time. Now I request
Thakur Jaivir Singh Ji, Cabinet Minister of UP, Minister in waiting to Vice President of India to say a few words. आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डायस पर विराजमान मेहमान खुसूसी परम आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी साहब, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री टीवी राय साहब जी, महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री सिप्ते रजी साहब, परम आदरणीय जस्टिस श्री एम.डी. साहब, वाइस चांसलर AMU अलीगढ़ श्री P.K. अब्दुल अजीज साहब एवं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सम्मानित महानुभाव, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के समस्त पुरातन छात्र व मीडिया व प्रिंट मीडिया के उपस्थित बंदियों, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सर सैयद अहमद खां का शुमार उन खास लोगों में होता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी। वो अंग्रेजी हुकूमत में जज होने के बावजूद भी सच कहने से डरते नहीं थे। सर सैयद अहमद खां की पूरी जिंदगी इस बात की गवाह है कि वे बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात में घबराते नहीं थे और हमेशा दूसरों के मामलात में मददगार होते थे। आज जबकि सर सैयद अहमद खां का इंतकाल के इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनके ख्यालात आज भी लोगों को हौसला देते हैं। 1858 से लेकर 1898 तक की जमाना जिसमें तारीख ने नई करवट ली, इसमें सर सैयद अहमद खां की शख्सियत सबसे नुमाया नजर आती है। हर बड़े आदमी की ये खुशियत होती है कि जो जिस अंदाज से देखे उससे वह शख्स वैसा ही नजर आता है। सर सैयद अहमद खां उन्हीं अहम लोगों में से एक थे। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिसका फायदा हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर पहुंचा। विश्वविद्यालय के स्ट्रेची हॉल के पत्थरों को देखने से पता चलता है कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं के नाम भी आते हैं। 17 अक्टूबर 1817 हिंदुस्तान के उस सपूत का जन्मदिन है जिसको पूरी दुनिया सर सैयद अहमद खां के नाम से जानती है। सर सैयद खां की जिंदगी का अहम मकसद मुसलमानों और समाज के दबे कुचले लोगों के अंदर तालीम शिक्षा का माहौल पैदा करना था, जिससे कि ये तबका सुख और चैन की जिंदगी गुजार सके। ये आला तालीम है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स के मैदान में आने के बाद लोगों को जिंदगी की अलग अलग राहें सफर साफ नजर आती हैं। सर सैयद अहमद खां ने साफ लफ्जों में कहा कि इस मुल्क में ऐसी तालीम चाहता हूं कि जिसके जरिए लोगों को उनका हक मिल सके। सर सैयद अहमद खां हिंदू और मुसलमानों को एक कौम मानते थे। वो मुल्क से फिरका परस्ती को मिटाकर तमाम कौमों और मजहब के मानने वालों को एकजुट देखना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां के जरिए कायम किया गया ये कॉलेज आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मकाम रखती है। आखिर में मैं एक बात माननीय मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे सरकार मुस्लिम छात्रों के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए लखनऊ में बड़ा और आलीशान सेंटर 4 करोड़ की लागत से कायम करने जा रही है। इस्लामी, अरबी, फारसी के 100 मदरसे प्रथम चरण में ग्रांट पर लिए जा रहे हैं। यूनानी मेडिसिन का नया निदेशालय लखनऊ में कायम किया जा रहा है।